Good morning, class. In the previous lecture about bills of exchange, we have seen the basic concept of bills of exchange. Okay? In the first lecture, we have seen the basic concept of bills of exchange, meaning, features, due dates, calculation of due dates, parties of the bill, all these things we have seen. If you want to see the first video of the bills of exchange, you can go in playlist and you can watch the videos. Okay. So in the second lecture, we will understand the cases of the bills of exchange. Means how accounting treatment will be done in the case of bills of exchange. वो कौन सी अकाउंटिंग प्रोसीजर है, वो कौन से अकाउंटिंग प्रोसेस है, जैसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग को हम करेंगे. ये इन चीजों को हम सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में. क्लियर? माय डियर फ्रेंड्स, there are some cases of the bills of exchange. There are some cases of the bills of exchange. Case number 1. Case 1. Okay. When bills of exchange drawn by the drawer and retain up to the date of maturity. Okay. Case number 1. Under this case, what I am saying, when bills of exchange drawn by the drawer and retained up to the date of maturity, in this case what accounting treatment will be done. अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए या ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसे कौन से स्टेप्स लेंगे या ऐसे क्वेश्चन में हम कौन सी जनरल एंट्री बनाएंगे, कैसे अकाउंटिंग करेंगे, इन सब सारी चीजों को हम इस लेक्चर में सीख रहे हैं. ठीक है? तो जब ये केस आए, ठीक है ना, और इस केस में कुछ ऐसा कहे, when bills of exchange drawn by the drawer and retained up to the date of maturity. अब इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में आपको समझाना चाहूंगा. क्या? जैसे A has drawn a bill on B. A ने एक B के ऊपर बिल लिखा. ओके. For the period of 3 months. कितने मंथ का? 3 महीने के लिए. अमाउंट है ₹10,000. ओके. The amount of the bill is ₹10,000 and the date of writing on suppose 1st July. So question is, A is writing a bill for the 3 months for the amount ₹10,000 on date 1st July on B. Clear? Okay. And A is holding the bill up to date of maturity. Okay. ये जो A है बिल्कुल लिख रहा है वो अप टू डेट ऑफ मैच्योरिटी. डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब मैं कल समझा चुका हूं. देखना हो समझना हो तो जाके पहले वीडियो में आप अच्छे से देख के इसको समझ सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट. तो
डेट ऑफ मैच्योरिटी तक इस बिल को होल्ड कर रहा है। तो पहला केस मेरा क्या है, व्हेन if the bills of exchange drawn by the drawer and retained up to the date of maturity, so what accounting treatment will be done? तो हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो दोनों साइड करेंगे। फॉर योर नॉलेज कंसर्न, ड्रॉअर के वहां भी करेंगे और ड्रॉई के वहां भी करेंगे। क्लियर ना? ड्रॉअर ये होगा जो बिल को लिखेगा, ए ड्रॉअर and B drawing. Clear? So on date 1st July, A is writing a bill. When he will write the bill, entry will be BR account debit. BR account debit to B. BR मतलब बिल्स रिसीवेबल। याद आया बिल्स रिसीवेबल BR। नहीं याद आया तो जाके प्लेलिस्ट में डेटर ऑल द अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ ऑल द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, डेटर एंड क्रेडिटर की जो मीनिंग वाला वीडियोज है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके आप मीनिंग ऑफ BR देख सकते हैं। क्लियर? तो BR बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू B, किस पे लिख रहा है? B के ऊपर लिख रहा है। ओके, कितने थाउजेंड का? 10,000। In the book of B, entry will be A debit to BP. A debit to BP. Entry 10,000. This अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता है, the question is silent about the date of acceptance, then on the date 1st July को ही हम क्या मान लेंगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो हम ये जो एंट्री बनाएंगे वो 1st जुलाई डेट का कॉलम बना लीजिएगा आप लोग। तो पहली एंट्री समझ में आई बिल लिखने की। ये एंट्री कॉमन है, सारे केसेस में करनी है, इसलिए इस एंट्री को रट लीजिए आप लोग। रट क्या मतलब समझ लीजिए। क्लियर? फर्स्ट एंट्री BR अकाउंट डेबिट टू B in the sense you can write to drawing, but the name of drawing is clear here and B is drawing, so we can write the clear name clearly. Okay, now BR account debit to B rupees 10,000 and drawer is clear here, A debit to BP. Okay, in this question और कोई कंडीशन इसमें नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल केस है। केस नंबर 1 क्या है? 1st जुलाई को बिल लिख रहा है और डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी? 3 मंथ की डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी? 1st अक्टूबर। ओके, यस। डेट ऑफ मैच्योरिटी 4th सितंबर। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। देखते ध्यान से। ओके, नो प्रॉब्लम। 1st जुलाई, फ्रॉम द 1st जुलाई वी विल कैलकुलेट 3 months। 1st जुलाई टू 1st अगस्त 1 month, 1st अगस्त टू 1st सितंबर दूसरा मंथ एंड 1st सितंबर टू 1st अक्टूबर तीसरा मंथ। 3 मंथ कंप्लीट हो गए, प्लस 3 days एज ए ग्रेस पीरियड। तो 1st जुलाई आप ऐसे लिख सकते हैं 1st अगस्त प्लस 1st सितंबर प्लस 1st अक्टूबर प्लस 3 days एज ए ग्रेस। तो कितना हो जाएगा? 1 महीना 1st मंथ, ये दूसरा महीना एंड ये जो सितंबर से अक्टूबर ये 3rd मंथ। तो 1st अक्टूबर को तीसरा महीना पूरा प्लस 3 days। 3 days का मतलब 4th अक्टूबर। 4th अक्टूबर जिनका भी आंसर होगा उनके लिए तालियां, और जो नहीं लगा पाए हैं वो सीख ले कैसे
कैलकुलेट करना है कि 4 अक्टूबर ही डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगा। डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट करने का मैंने पूरा तरीका पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो बी आर डेबिट टू बी एंड ए डेबिट टू बी सॉरी, एंड द डेट ऑफ मैच्योरिटी, इसके बीच कुछ भी नहीं कर रहा है, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द एनीथिंग। ओके, सो नेक्स्ट एंट्री ऑन द डेट 4 अक्टूबर, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा, इसके वहां पैसा आएगा और ये पैसा देगा, इसके वहां पैसा आएगा, इसके वहां पैसा जाएगा, इसके वहां से पैसा जाएगा मतलब बी देगा और ए लेगा। ओके, तो पैसा आएगा तो क्या होगा, क्या होता है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर पे पैसा आ रहा है, बीआर को ट्रांसफर कर देगा। ओके, ट्रांसफर क्या मतलब कैंसिल कर देगा, और ये बीपी डेबिट टू बैंक रुपीज 10,000 यहां भी 10,000। तो अगर ये केस नंबर 1 आए और इस केस में क्या है, इफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द ड्रॉअर एंड रिटेन अप टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो ये सिंपल एंट्रियां होंगी। पहला केस बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, ए डेबिट टू बी की ड्रॉअर के वहां रिसीव की 4 अक्टूबर, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको कैलकुलेट करके लिखना है। तो जनरल एंट्री में डेट नहीं भूलना चाहिए आपको, सबको कैलकुलेट करने आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी होगी। तो आपको पहला केस समझ में आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम, ये एंट्री फर्स्ट केस में होंगी। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन डिपेंड है आपके बुक में, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2, ओके, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2, इफ द बिल discounted from bank before the date of maturity, क्लियर। मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा, इफ द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ध्यान रखें, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, केस नंबर 2। अब इस स्टोरी को समझने के लिए, इस केस को समझने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, आइए यही समझ लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। A is writing a bill on B on the date 1st July for the 3 months of the amount rupees 10,000. Clear? अब ये जो 3 महीने का पीरियड है, बहुत लंबा पीरियड है। क्या है? बहुत लंबा पीरियड। तो अगर इस बीच, इस 3 महीने के दौरान, मतलब बिटवीन 3 months, इफ ए नीड्स द मनी, ए को पैसे की जरूरत होती है, तो ए किसके पास जाएगा? पैसे की जरूरत पड़ सकती है। 3 महीने का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है, आपको भी क्लियर है? अच्छा, तो इस दौरान, इस 3 महीने के दौरान 1 जुलाई से 4 अक्टूबर के बीच में, मान लीजिए 1 जुलाई, दूसरे मंथ की 1 अगस्त को पैसे की जरूरत पड़ जाती है। 1 अगस्त को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, क्या होगा? वो किसके पास जाएगा? तो ए, बी, वो बी से कहेगा भाई मेरे पैसा दे दो, तो बी के साथ वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में है। बी से 3 महीना पहले वो पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन है,
उसमें कहीं भी बी को कंपेल नहीं कर सकता है फॉर द पेइंग बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। इज इट क्लियर? अब ए के पास क्या, ए कहां जाएगा? ए बैंक के पास जाएगा, क्योंकि उसको चाहिए पैसा, पैसे की उसको जरूरत है। ओके, तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन हुआ है 3 महीने के लिए, ए इसको क्या करेगा? बैंक को दे देगा। इसको क्या करेगा? बैंक को दे देगा, और बैंक इसके बदले कुछ चार्ज लेगा, और वहां से उसको उस अमाउंट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 10,000 है, तो बैंक का जो भी टाइम पीरियड बचता है उसके लिए डिस्काउंट अमाउंट काटती है। उसके बाद वो अमाउंट बैंक लेने के बाद इसको कुछ 10,000 में से 9,900 या 9,800 रुपए ऐसे समथिंग करके बैंक विल पे टू द ए को पैसा मिल जाएगा, ए अपना काम करेगा। ठीक है, फिर ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, अब डेट ऑफ मैच्योरिटी आया 4 अक्टूबर, ठीक है, उस डेट को बी क्या करेगा? बी किसको पेमेंट करेगा? ए को नहीं करेगा। कौन पेमेंट रिसीव करेगा? बैंक विल रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल। कौन करेगा? 4 अक्टूबर को बैंक को पे करेगा। देखिए ध्यान रखिएगा, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी हु विल रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल, हु विल होल्ड द बिल। जो बिल को होल्ड करेगा उस डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, वही बिल का अमाउंट रिसीव करेगा। क्लियर? तो अब देखिए एंट्री क्या बनी? बिल लिखने की पहले एंट्री 1 जुलाई को एंट्री बनेगी क्या? BR डेबिट टू बी, यहां एक्सेप्ट करने की ए डेबिट टू BP। क्लियर? अमाउंट लिख लीजिएगा आप लोग। फिर 1 अगस्त को क्या कर रहा है? डिस्काउंट कराना, मतलब बैंक से डिस्काउंट कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। उसको इस टर्म को क्या कहते हैं? बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो एंट्री क्या होगी? कौन करा रहा है? ए करा रहा है। कौन करा रहा है? ए है, और ये बी है। बी को इसके बारे में पता नहीं है। ए इज द ओनर ऑफ द बिल। बी क्या कर सकता है? बी उसको क्या करेगा? बैंक से डिस्काउंट करा लेगा। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। अब सपोज 100 रुपीज डिस्काउंट ले रहा है, 10,000 में से 100 रुपए क्या बैंक डिस्काउंट ले रहा है, तो 9,900 से क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। 100 रुपए से ये हो जाएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस, और BR 10,000। क्लियर? इस केस में यहां पे नो एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि भैया ए का बिल है, ए जो चाहे वो करे। बी क्या करना है? बी को बिल एक्सेप्ट करना है और पे करना है। ए के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? जब इसके वहां बैंक से डिस्काउंट कराने की एंट्री होगी, तो इन द बुक ऑफ बी देयर विल बी नो एनी एंट्री। ओके, अब आएगा कौन सा दिन? दिन जिसका सबको इंतजार था, और वो डेट क्या है? 4 अक्टूबर। वो डेट क्या है? 4 अक्टूबर। अब बी क्या करेगा? बी पेमेंट कर देगा, BP डेबिट टू बैंक, BP डेबिट टू बैंक। क्लियर? यहां क्या हो जाएगा? नो एंट्री। क्यों? क्योंकि ये तो पैसा लेके किनारे हो गया। अब पैसा कौन लेगा? बैंक लेगा। तो ये BP डेबिट टू बैंक, ये अपने पेमेंट करने की एंट्री हुई, ये अपने BP को। अब बैंक अपने वहां जो भी करे पैसा रिसीव करेगा किससे? इससे। हाँ, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब ये सारे केसेस पढ़ लेंगे, तो हाँ हो सकता है बी उस डेट को पेमेंट करने से इनकार कर दे या न कर पाए, तो उसको हम कहेंगे डिसऑनर ऑफ द बिल। ओके, तो ये हम आगे के केसेस में पढ़ेंगे। अभी ये नॉर्मल केसेस है, इन सब सारे पहला केस नंबर 1 देखा, केस नंबर 2 भी हमने देख लिया, सबको समझ में आ गया होगा। ये सारी एंट्रीज हैं, इसको देख लीजिएगा। सो केस नंबर 3, केस नंबर 3। ओके, देखिए फटाफट।
केस नंबर 3। केस 3, endorsement of the bill, endorsement of the bills of exchange। क्लियर? अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इफ ए नीड द मनी, सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है। ए 1 जुलाई को बिल लिख रहा है, ए 1 जुलाई को बिल लिख रहा है किसके ऊपर? बी के ऊपर। अमाउंट 10,000, पीरियड 3 मंथ्स। ओके, अच्छा, पता चले ए को भी पैसा देना है किसको? सी को। ए बी से पैसा लेगा, लेकिन उसको देना है किसको? सी का। सी एक क्रेडिटर है उसका, क्रेडिटर सपोज, और ए हैज टू पे द अमाउंट रुपीज 10,000, सेम अमाउंट सी को भी देना है। तो ए कहेगा क्या? ए सोचेगा कि जो मैं पैसा बी से पाऊंगा, ठीक है, उस पैसे को क्यों ना मैं सी को ये बिल दे दूं और उस डेट को सी को, बी सी को पेमेंट कर देगा डायरेक्ट। एक पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, सपोज ए को पैसे की जरूरत पड़ गई और बैंक किसी कारण से पैसे देने से इनकार कर दे, तो क्या करें? ये ए के पास एक और ऑप्शन है, उस बिल को बेच दे। उस बिल को क्या करें? इंडोर्स कर दे। क्या कर दे? किसी अदर पर्सन को दे दे कि लो भैया, इसका पेमेंट तुम्हें, अभी मुझे पैसे की जरूरत है, तुम मुझे पैसा दे दो और तब तक ये बिल रखो, इस डेट को तुम्हारा ये पेमेंट मिल जाएगा। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन हो सकता है। तो इन दैट कंडीशन व्हाट द ड्रॉअर विल डू, ये ड्रॉअर हुआ, ये ड्रॉइंग हुआ। ओके, तो मान लीजिए जब इंडोर्स करेगा ए सी को इंडोर्स कर दिया, बेच दिया। इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का मतलब ट्रांसफर ऑफ द बिल और बिल या सेल ऑफ द बिल, इसको होता है, ठीक है ना। तो ई इन द बुक ऑफ ए एंट्री 1 जुलाई, सेम एंट्री लिखने की क्या होगी? बी आर डेबिट टू बी, यहां होगा क्या? ए डेबिट टू बी बी। ओके, फिर सपोज 1 अगस्त को इन्होंने क्या किया? इस बिल को ट्रांसफर कर दिया। डेट ऑफ इंडोर्समेंट 1 अगस्त, क्या होगी? किसको बेचा? सी को बेचा। ए ने सी को बेच दिया, तो सी डेबिट टू बी आर, क्या हो जाएगा? सी डेबिट टू बी आर। यहां क्या होगा? नो एंट्री। अब यहां एक छोटा सा कॉलम हम खींच लेते हैं सी की बुक में। सी के वहां क्या होगा? बी आर डेबिट टू कौन? ए। तीसरा व्यक्ति कौन है? सी, जिसको बिल बेच रहा है ए। तो उसके बुक में क्या हो जाएगी? बी आर उसके वहां आ रहा है, और कौन दे रहा है? टू ए दे रहा है। ओके, 4 अक्टूबर को बिल का पेमेंट हो रहा है। 4 अक्टूबर को बिल का पेमेंट हो रहा है, कर लीजिए पेमेंट। यहां क्या होगा? नो एंट्री। यहां क्या होगा? बीपी डेबिट टू बैंक। यहां क्या होगा? बैंक डेबिट टू बी आर। ये सारी डेट एंट्री 4 अक्टूबर को। ठीक है, केस नंबर 3 आपको समझ में आ गया। जब हम बिल को इंडोर्स करेंगे, ए को पैसे की जरूरत पड़ी एंड ए हैज इंडोर्स टू दैट बिल, किसको? सी को। ए ने बी के ऊपर बिल लिखा है, ए उसको इंडोर्स कर दिया सी को। ए की बुक में लिखने की बी आर डेबिट टू बी, ए डेबिट टू बी बी, बी के इन द बुक ऑफ बी, इन द बुक ऑफ सी, यहां पे कोई एंट्री नहीं है। फिर ऑन द डेट 1 अगस्त when A is selling to B, A is endorsing to bill to C, तो क्या हो जाएगा? C debit to BR, in the book of B no entry, in the book of C BR debit to A।
फिर ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी पेमेंट वाले दिन क्या होगा, BR, यहाँ पे नो एंट्री, क्योंकि बिल तो उसने C को दे रखा है, बेच दिया, तो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, B को पेमेंट देना है तो BP डेबिट टू बैंक, और C के वहां पेमेंट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। क्लियर? ये केस नंबर 3 था। होप आपको समझ में आ गया। केस नंबर 4, केस नंबर 4। Our students may have a reservation from tomorrow till Case number 4. Case number 4 is when bill sent for collection. ठीक है ना? देखिए A, B। कई बार बिजनेसमैन को बहुत काम होता है और बैंक एक एजेंट के रूप में काम करता है बिजनेसमैन के लिए। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं और अब आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता भी होगा। तो सपोज ए के पास बहुत काम है और ए अपना वसूली का काम बैंक को दे देता है। तो क्या किया बैंक ने, ए ने बैंक के पास बिल को भेज दिया, किस लिए? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन मतलब भेज दिया, किसके लिए? कलेक्शन के लिए। उसका पैसा बैंक कलेक्ट करेगी और मेरे खाते में डाल देगी। क्लियर? तो इन द बुक ऑफ ए एंड इन द बुक ऑफ बी जो सेम एंट्री रहेगी वो लिखने की और एक्सेप्ट करने की, ये सेम एंट्री रहेगी। आप हर केसेस में होंगी, इसको आप याद कर लीजिएगा एक तरीके से। BR डेबिट टू बी, अगर समझ रहे हो तो सही है, और नहीं समझ रहे हो तो रेक्टिफिकेशन। A डेबिट टू BP, ठीक है ना? एक्सेप्ट कर लीजिए। 1 जुलाई, सपोज 1 जुलाई को लिख रहा है, 1 अगस्त को इसने भेज दिया। तो जब बिल को बैंक के पास भेजेगा कलेक्शन के लिए, एंट्री क्या होगी? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। यहां क्या होगा? एज इट इज नो एंट्री, यहां कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ए का बिल है, ए इज द ओनर ऑफ द बिल एंड ए कैन सेंड एनीवेयर टू द बिल। 1 अगस्त एंड ऑन द डेट 4 अक्टूबर क्या होगा? एंट्री होगी, यहां पे पैसा आएगा बैंक डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 10,000। यहां क्या होगा? थर्ड एंट्री BP डेबिट टू बैंक। इसको पेमेंट करना है तो पेमेंट की एक ही एंट्री होगी, BP डेबिट टू बैंक, और बैंक डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन इसके वहां होगी ड्रॉअर के वहां, बैंक डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सो इस तरीके से ये 4 केसेस हैं। ये 4 केसेस आज हमने पढ़े। पहला, इफ द बिल ड्रॉन बाय द ड्रॉअर एंड होल्ड अप टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, when if bill discounted from bank. Third case, when bill endorsement of bill, and fourth case when bill sent for collection to the bank. तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन हमने पढ़े। इन चारों केसेस के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, ओके? और ये सेम एंट्रियां मैंने चारों केसेस में अलग अलग सारी एंट्रियां इन द बुक ऑफ ड्रॉअर एंड इन द बुक ऑफ ड्रॉइंग, ये सारी केसेस में सारी एंट्रियों को मैं एक्सप्लेन कर चुका, ठीक है ना? अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, जो पहला वीडियो था उसको भी देख तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगे और आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर? तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट्स, ओके? एंड वॉच द वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस, ओके? एंड डू योर वर्क कंप्लीट एंड सेंड मी, ओके? जो भी आप क्वेश्चन लगाएंगे आप मुझे नोट्स में भेज देंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।